हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है। कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ बिलीव्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, जहाँ पे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बातों को कह रहा है, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा है, अपने अपने थॉट्स को सामने रख रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। वो क्या है? कम्युनिकेशन है। आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन बेसिकली दो तरह का होता है। पहला टाइप जो है वो है वर्बल और दूसरा जो है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन को हम दो कैटेगरीज में बांटेंगे, एक ओरल और दूसरा रिटन। सबसे पहले हम वर्बल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें कि हम शब्दों के माध्यम से बातचीत करते हैं। ये किस तरह का संचार है? ये शाब्दिक संचार है। शाब्दिक संचार मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वी कम्युनिकेट वर्बली। वर्बली कम्युनिकेट करेंगे मतलब हम बातों में अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बातचीत एक एक किस तरह की बातचीत भी होती है जहाँ पे कि शब्दों की आवश्यकता हमें नहीं होती। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन दो तरह की होती है। तो ओरल जो है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से की जाती है और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में दोनों के लिए ही काफ़ी गुंजाइश रहती है। ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही पैरेलली एक दूसरे के साथ साथ में चलती हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और oral or written communication is known as verbal communication, where we are using words. So it is used very frequently and both in formal and informal settings, and it builds upon human relationships, provides immediate feedback, requires less time, and it is economical. So basically these all are the advantages that we are reading of verbal communication. So people listening to the speaker can ask questions, make comments, add to the clarification, right? Both the speaker and listener can enter into any kind of short dialogue, but thereby making the communication whole and the event purposeful. It builds up healthy climate in the organization by bringing the superior and subordinate together. As you have seen that it is very important for people to communicate in order to come together or to make other people understand. No human relationship is possible without communication, and all the business organizations are based on human relationships. Like how you say some organizations are so mechanized, why do they even need humans? But as you see, machines are mostly operated by humans only, or there is uh, there is no absenteeism of humans. Like even if an organization is fully mechanized, still they would be having some manpower therein, or they would be having some people working for them. So it is very important for those people to bond, to come together, to talk about issues, to make policies, to develop procedures. So for all of that, communication is required. So, oral communication is very effective in interacting with groups. The speaker can immediately understand the group's reaction and arrive at a satisfactory conclusion by putting his views across and exchanging points. So, what are the disadvantages? Disadvantages of oral communication. So, firstly, oral communication does not always save time and money. How?
sometimes it just goes on and on and on without an end to it. It leads to more of wastage of time. uh, Further, it cannot be retained like the people who are available only can listen to oral communication, but for the people who have missed it, जो लोग उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद ही नहीं हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं और बाद में उसे नहीं सुन सकते. जबकि रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन में लिख के मैसेज छोड़ दिया और सुनने वाला उसे जब चाहे सुने, पढ़ने वाला मतलब उसे जब चाहे पढ़े. और ओरल कम्युनिकेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग इफ द स्पीकर हैज़ नॉट केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड हिज थॉट. हम कितनी बार ऐसा देखते हैं कि दो लोगों की बातचीत में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? जबकि प्रॉपर वर्ड्स का चुनाव ना किया गया हो, सही शब्दों का चयन ना किया गया हो, या क्या किया गया हो, अपने आइडियाज़ को ठीक ढंग से सामने ना रखा गया हो. और इस तरह से बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग गोइंग अमिस और एनी मिस्टेक और ओमिशन, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म नहीं है ओरल कम्युनिकेशन का. तो ऐसे में अगर कुछ भी मिस आउट हो जाता है तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी किसी पे नहीं डाल सकते. तो ओरल कम्युनिकेशन में इसको अफेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले तो कि जो ऑडियंस है वो बातचीत ना करे, उन्हें शांत रहना होगा. जो टॉकर है, जो पर्सन बात कर रहा है, उसको कंफर्टेबल फील कराएं, उसको ईज़ पे पुट करें और ऐसा महसूस कराएं वक्ता को कि आप उसे सुनना चाहते हैं. कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हैं अगर सराउंडिंग में, कोई भी बाधाएं अगर हैं, तो आप उन्हें हटा दें. टॉकर के साथ, जो वक्ता है उसके साथ एम्पथाइज़ करें. बी पेशेंट, थोड़ा सा आप पेशेंट रहें, मतलब आप सब्र रखें. और अपने टेम्पर को, अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आप थोड़े से अपने मिजाज में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, कोई डिस्कम्फर्ट है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखिए. होल्ड योर टेम्पर. गो ईजी ऑन आर्ग्यूमेंट्स एंड criticism. That is how you make oral communication successful. Now we come to written communication. So written communication क्या है? written communication कोई भी ऐसी communication जिसमें कि हम लिख के बातचीत करते हैं, अपना जो मैसेज है उसे लिख के सामने वाले तक पहुंचाते हैं. तो यहाँ पे ये क्या है? क्रिएटिव एक्टिविटी है. यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी किस तरह काम करती है कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप अपने वर्ड्स सामने रखते हैं, आपने उनमें कोई लय रखी है या नहीं रखी है, आपने कोई उसमें सिमेट्री रखी है या नहीं रखी है. सो इट इज़ अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्टाइल. एंड रिटन कम्युनिकेशन हैज़ बिन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत तरह की भाषाएं हमारे पास में हैं, बहुत तरह के राइटिंग स्टाइल्स हमारे पास में हैं. तो हम जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर ऑडियंस. और यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन का क्या है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स और लेटर्स और अल्फ़ाबेट. और किस तरह का कॉम्बिनेशन? जो कि लीड करता है वर्ड्स की तरफ, और वो जो वर्ड्स हैं वो आगे चल के क्या बनते हैं? सेंटेंस. और वो जो सेंटेंस हैं वो आगे चल के पैराग्राफ बन जाते हैं. एंड वी हैव come through a long history of evolution, so as in order to put our as in order to be able to put our thoughts into words, into written words. So there may or may not be some rules to writing your message depending upon who it is that you're writing to. For example, अगर आप formal message दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ rules को follow करना होगा. But if it is an informal kind of message, if you're writing to a friend or a relative, in that case you do not need to follow any of the rules or like any procedures. That is not required. So what are the features of written communication? The features are, firstly,
इट इज़ एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से लिखना होगा। आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, आप कोई भी डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी मिस ना कर जाएं और आप इस अंदाज से लिखें कि वो लेजिबल हो, सामने वाला पर्सन उसे पढ़ सके। और यहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने मैसेज को प्रिसाइज रखें, टू द पॉइंट रखें। और यहाँ पे क्या है कि जो रिटन कम्युनिकेशन है इसका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है। डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है कि मतलब आपने किसी कागज़ पे लिखा है और वो बाद में पढ़ा जा सकता है। इसके कुछ फ़ायदे हैं रिटन कम्युनिकेशन के। सबसे पहला फ़ायदा यही है जो हमने अभी बात की कि ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। दूसरा ये है कि यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे है। यूनिफॉर्मिटी है मतलब आप जैसे चाहें वैसे नहीं कर सकते, आपको कोई पैटर्न फॉलो करना होगा। और बहुत सारे लोगों को इसकी एक्सेस मिल जाती है, मतलब जब कोई भी चाहे तो इसको एक्सेस कर सकता है, इसको रीड कर सकता है, प्रॉपर रिकॉर्ड बन सकते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज में सुधार आता है कि उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल है और ये एक्यूरेट होगा, अनएम्बिग्यूअस होगा। इसके साथ साथ में यहाँ से क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन में वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स का एक पैटर्न बन जाएगा, एक सलीका बन जाएगा। और इससे मीटिंग्स में भी हेल्प मिलेगी। और रिटन कम्युनिकेशन क्या करता है, प्रॉपर असाइनमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फैसिलिटेट करता है। और इसके कुछ नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या क्या हैं? एक तो अगर कोई अपने एक्सप्रेशन में पुअर है, जिसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से अपने मैसेज को नहीं लिख पाएगा। जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो भी नहीं लिख पाएगा। और सेकंड क्या है कि कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ और नहीं तो आपको एक पेन और पेपर की ज़रूरत तो होगी ही होगी, जबकि ओरल कम्युनिकेशन में हमें उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। फीडबैक इमीडिएट नहीं है, मतलब अगर ऑडियंस ने मैसेज को पढ़ा और उसके बारे में क्या सोचा वो हम नहीं जान पाएंगे। और रिटन कम्युनिकेशन का क्या डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे क्या होता है, फीडबैक तो पॉसिबल है ही नहीं इमीडिएट। साथ में क्या है, पेपर क्लटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइम्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइल्स, बहुत ज़्यादा पेपर्स अनयूज्ड या फिर अनअटेंडेड पड़े रह जाते हैं। इसके बाद क्या है, नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें कि आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही आप लिखित रूप से, ना ही आप मौखिक रूप से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, बल्कि यहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे मतलब आप अपने शरीर के माध्यम से, इशारों के माध्यम से कुछ बातचीत करेंगे। जैसे कि अगर आप कभी ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस कर रहे हैं और आप देखते हैं रेड लाइट है, और आपको क्या करता है, पुलिस वाला हाथ के इशारे से समझाता है कि आपको रुकना है। अगर पुलिस वाला नहीं है तो आप अपने आप रेड लाइट्स देख के रुक जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल पे। तो ये नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब आप अपने चेहरे के हाव भाव से कुछ बातें कहेंगे। आप अपनी आँखों से, अपने आईज़ से, अपने फोरहेड फोरहेड आपका कभी रिंकल हो जाएगा अगर आपको कोई टेंशन है, तो उससे भी आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ की चिंता में हैं। या फिर शोल्डर मूवमेंट से, या फिर अपने खड़े होने के तरीके से आप क्या करते हैं, आप कोई ना कोई मैसेज सामने वाले को दे रहे होते हैं। उसके बाद आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से कॉन्टिन्यूसली आई कांटेक्ट बना सकते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। इससे ये शो होता है कि जो पर्सन है वो आपकी एज का है, वो आपके सिमिलर स्टेटस का है। क्योंकि अगर आप किसी फॉर्मल सेटिंग में हैं, अगर आप अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा देर आई कांटेक्ट रख पाएँ। उसके बाद जेस्चर्स हैं आपकी भाव भंगिमाएँ, मुद्राएं, तो ये भी नॉन वर्बल का ही पार्ट है। उसके बाद बॉडी शेप एंड पोस्चर, आप किस तरह से खड़े होते हैं, आप किस तरह से किस तरह का आपका बॉडी पोस्चर, आप झुक के चलते हैं, आप स्ट्रेट चलते हैं,
आप बात करते हुए अपने हाथों को किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सब कुछ आपके बारे में कोई ना कोई मैसेज सामने वाले को देता है। फिर आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप कैसे बाल रखते हैं, बड़े बाल हैं, छोटे बाल हैं, या कलर्ड हेयर हैं, या फिर आपने बहुत कलर्ड कपड़े पहने हैं, या आपने बहुत फॉर्मल ग्रे वाइट ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहने हैं। ये सब कुछ आपके बारे में कोई ना कोई मैसेज सामने वाले पर्सन को देता है, और ये नॉन वर्बल की कैटेगरी में आता है। तो आप किस तरह से नॉन वर्बल को अफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे? सबसे पहले आप डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे? वी शुड केयरफुली नोटिस डिटेल्स अबाउट द वे वी स्पीक, gesture and move. We should be careful about use of our hands while conveying a message, and for how long do we sustain direct eye contacts. We should communicate at the level of person before us. If we fold our arms across our chest or across our legs while we talk, we are closing off communication. If we tap our feet, it shows that we are impatient. We must be ourselves. People who know who they are have a relaxed way of talking. तो ऐसा आमतौर पे देखा जाता है कि कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक रिलैक्स तरीके से बातचीत करते हैं. Only a little care, we can look pleasant, send out right signals, ensure that the people are interested in us before conveying a message. तो अब बॉडी लैंग्वेज के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एक फ़ायदे हैं, वो क्या हैं? एक तो ये कम्युनिकेशन का बहुत विजिबल एस्पेक्ट है. कोई भी अगर बातचीत कर रहा है तो साथ साथ में वो आपके नॉन वर्बल को भी नोटिस कर रहा है, और ये क्या करता है? वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है और कम्युनिकेशन को एक इंटेंसिटी देता है, और इट गोज़ अ लॉन्ग वे टू इम्प्रूव ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसके कुछ नुकसान भी हैं. नुकसान क्या है? एक तो इट के नॉट बी होली रिलाइड ऑन. आप पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं कर सकते. दूसरा, अलग अलग कल्चर के अगर लोग हैं तो उन्हें मुश्किल आती है एक दूसरे के इशारों को, उनकी भाव भंगिमाओं को समझने में. फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर एट्सेट्रा, कई बार ये सब चीज़ें इनअफेक्टिव हो जाती हैं इफ़ द लिसनर इज़ इनअटेंटिव. अगर सुनने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा तो ये सारी चीज़ें असरदायक नहीं रहेंगी. यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव इन लार्ज gatherings. So this is all about types of communication.